السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 10th جغرفی مارچ 2024 کا سالڈ ایگزام پیپر ہے۔ کوسچن آنسر 26/3/2024 اردو میڈیم اسٹیٹ بورڈ۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سوشل سائنس جغرفی پیپر سیکنڈ۔ سوال نمبر 1 ہے، صحیح متبادل چن کر جملے دوبارہ لکھیے۔ پہلا ہے، پینٹانال کے دلدلی علاقے میں ڈیش پایا جاتا ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے دیو خامت ایناکونڈا۔ دوسرا ہے، آبادی کے تقسیم پر ڈیش اثر کرتا ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے فزیوگرافی۔ تیسرا ہے، برازیل میں عام طور پر ڈیش آمد رفت کا ذریعہ ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے سڑک۔ چوتھا ہے، معلومات جمع حاصل کرنے کے لیے علاقہ کے مطالعاتی دورے کے دوران ڈیش کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے سوال نامہ۔ سوال نمبر 2 ہے، اگر الگ متبادل کو پہچانیے۔ برازیل کی ساحلی ریاست ریو ڈی جینیرو۔ دوسرا ہے، بھارت کا سب سے زیادہ بارش والا علاقہ۔ اس کا صحیح جواب ہے میگھالیہ کا پٹھار۔ دیکھیے، یہ میگھالیہ کا پٹھار وہ علاقہ ہے جہاں پر چیرا پونجی اور موسن رام، جہاں پر دنیا میں سب سے زیادہ 10,000 ملی میٹر بارش ہوتی ہے، وہ یہیں پر موجود ہے۔ تیسرا ہے، دریا ایمیزون کا معاون دریا پورس دریا۔ چوتھا ہے، جزیرہ نما بھارت میں پائے جانے والے جانور ارنا بھیسا۔ دیکھیے، اس میں ارنا بھیسا تو ایک ہے ہی، اس کے ساتھ ہرن اور چکارا بھی ہے، لیکن ارنا بھیسا بھارت کے دیگر علاقوں میں نہیں پایا جاتا، اسی لیے ارنا بھیسا صحیح متبادل ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، مختصر نوٹ لکھیے۔ کوئی دو، مانسون کی واپسی، بھارت کے پتجھڑ والے جنگلات، برازیل کا تاریخی پس منظر۔ پہلے کا جواب ہے، خشک موسم گرما میں عمل تبخیر سے پانی کی قلت نہ ہو جائے، اس لیے پتجھڑ کے جنگلات میں نباتات کے پتے خشک ہو کر گرنے لگتے ہیں۔ دوسرا، پتے جھڑنے کی وجہ سے عمل تبخیر کم ہو جاتا ہے اور نباتات کی زندگی بڑھ جاتی ہے۔ تیسرا، 1000 تا 2000 ملی میٹر کے درمیان کی بارش کے علاقوں میں خاص طور سے پتجھڑ کے جنگلات پائے جاتے ہیں۔ چوتھا، بھارت کے بیشتر حصوں میں بارش کا اوسط 1000 تا 2000 ملی میٹر ہے، اس لیے بھارت کے بیشتر حصے میں پتجھڑ کے جنگلات پائے جاتے ہیں۔ اگلا ہے، برازیل کا تاریخی پس منظر۔ برازیل 3 صدیوں سے زائد عرصے تک پرتگالیوں کے زیر اقتدار رہا۔ یہ ملک 7 ستمبر 1822 کو آزاد ہوا۔ دوسرا، 1930 سے 1985 تک یہاں فوجی حکومت قائم رہی۔ 1985 عیسوی کے بعد سے یہاں پر محدود صدارتی طرز کی جمہوری نظام حکومت کا قیام عمل میں آیا۔ تیسرا ہے، 20ویں صدی میں برازیل کو مختلف عالمی مالیاتی مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور ان سے کامیابی کے ساتھ یہ ملک سنبھل چکا ہے۔ چوتھا نقطہ ہے، موجودہ دور میں برازیل دنیا کی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرنے والا اور مستقبل کی ایک اہم منڈی کی حیثیت سے دیکھا جانے والا ملک سمجھا جاتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، الف دیے گئے برازیل کے نقشے میں مندرجہ کی نشاندہی کیجیے اور فہرست بھی بنائیے۔ کوئی 4 ہی کرنا ہے۔ برازیل کی سب سے اونچی چوٹی پیکو ڈی نیبلینا۔ دوسرا، ساؤ فرانسسکو ندی۔ تیسرا، مراجو جزیرہ۔ چوتھا، پمپاس۔ پانچواں، خط استوا۔ چھٹا، برازیل کی راجدھانی برازیلیا۔ دیکھیے، نقشے میں بتایا گیا ہے، سب سے اوپر ہے خط استوا، اس کے ایک طرف ہے ماراجو جزیرہ اور دوسری طرف ہے پیکو ڈی نیبلینا۔ اس کے بعد ہے نیچے برازیلیا اور سب سے نیچے ہے پمپاس، گھاس کا میدان۔ درج ذیل بھارت کے نقشے کا مشاہدہ کیجیے اور پوچھے گئے سوالات کے جوابات لکھیے۔ کوئی 4 نقشے کا عنوان اور ذیلی عنوان بتائیے۔ بھارت کے کس حصے میں سڑکوں کا گھنا جال نظر آتا ہے؟ کوئی 2 مغربی ساحل کی بندرگاہوں کے نام بتائیے۔ سلچر اور پوربندر کو جوڑنے والے ہائی وے کا نام بتائیے۔ پانچواں، کولکاتہ کے نزدیک جزیرے کا نام بتائیے۔ سوال نمبر 4 کا بے ہے۔ پہلے کا جواب ہے بھارت قومی شاہراہیں اور اہم بندرگاہیں۔ دوسرا، بھارت کے شمال اور جنوب میں سڑکوں کا گھنا جال نظر آتا ہے۔ تیسرا، ممبئی اور کوچی۔ چوتھا، مشرق مغرب شاہراہ اور پانچواں، نیو مور جزیرہ۔ قومی شاہراہیں اور بندرگاہیں۔ سوال نمبر 5، جغرافیائی وجوہات بتائیے۔ کوئی 2۔ پہلا ہے، ہمالیہ کے بلند علاقوں میں نباتات کی تعداد بہت کم ہے۔ دوسرا، برازیل میں منطقہ حرہ کے گرد باد طوفان کبھی کبھار ہی آتے ہیں۔
तीसरा, अमेज़न दरिया की वादियों की सिमत जाते हुए इंसानी बस्तियां कम आबाद होती जाती है। चौथा, माहीगीरी भारत की मईशत में अहम रोल अदा करती है। इसका जवाब है पहला नुक्ता, हिमालय के बुलंद इलाकों में दर्जे हरारत बहुत ही कम होता है, कहीं कहीं तो दर्जे हरारत सिफर से भी कम होता है। हिमालय के बुलंद इलाके में हर जगह बर्फ़ की तहें होती है। दूसरा, इंतहाई सर्द आबो हवा और बर्फ़ की तहों की वजह से हिमालय में नबातात की अफजाइश बड़े पैमाने पर नहीं होती। तीसरा, मौसम गर्मा में हिमालय का दर्जे हरारत निस्बतन ज़्यादा होता है और बर्फ़ भी पिघलती है। चुनांचे मौसम गर्मा में हिमालय में मौसमी फूल पत्ते लगते हैं, लेकिन मौसम सरमा के आते ही ये ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए हिमालय के बुलंद इलाकों में नबातात बहुत ही कम पाई जाती है। ब्राज़ील में मुंतखब हारा के गर्दबादी तूफ़ान कम आते हैं। इसका जवाब है पहला नुक्ता है, ब्राज़ील के साहिली इलाक़ों में ख़त इस्तवा के करीब अमूमन दर्जे हरारत में कोई ख़ास फ़र्क नज़र वाक़ नहीं होता। दूसरा, इस इलाक़े में हवाएं मुसलसल उमूदी सिमत में बहती रहती हैं। तीसरा, इस इलाक़े में अंदरून मुंतखब हारा का मजमूई हिस्सा तंग होने की वजह से गर्दबाद तैयार नहीं होते, इसलिए ब्राज़ील में मुंतखब हारा के गर्दबादी तूफ़ान बहुत ही कम आते हैं। सवाल नंबर 6 का अलिफ है, दिए गए आदाद शुमार की बिना पर सादा सतूनी तरसीम बनाइए और दर्ज झैल सवालात के जवाब दीजिए। भारत शहरकारी का रुझान। अभी दोनों में तरसीम में से कोई एक करना है। बे है, मंदजैल तरसीम का मुताला करके सवालात के जवाब लिखिए। भारत और ब्राज़ील कौमी आमदनी में शोबों का हिस्सा और शोबे में मसरूफ़ आबादी। पहला है, तरसीम में कौन से शोबों की मालूमात दी गई है, इनके नाम लिखिए। दूसरा, भारत की कौमी आमदनी में सबसे ज़्यादा किस शोबे का ताउन है। तीसरा, ब्राज़ील के इब्तदाई शोबे से मुंसलिक आबादी का फ़ीसद कितना है। चौथा, दिए गए दो ममालिक में से कौमी आमदनी में इब्तदाई शोबों का हिस्सा किस मुल्क में कम है। पाँचवा, किस मुल्क में सलासी कौमी पैदावार का हिस्सा कम है। छठा, ब्राज़ील की 19% आबादी कौन से शोबे से मुंसलिक है। पहले का जवाब है शोबे जाती तकसीम है सलासी सानवी इब्तदाई। भारत में तकरीबन 48.8% आबादी इब्तदाई पेशे, 24.3% सानवी पेशे और 26.9% आबादी सलासी पेशे से मुंसलिक है। दूसरा, ब्राज़ील में तकरीबन 10% आबादी इब्तदाई पेशे, 19% आबादी सानवी पेशे और 71% आबादी सलासी पेशे से मुंसलिक है। तीसरा, भारत में मजमू कौमी पैदावार की में इब्तदाई शोबे का हिस्सा 17%, सानवी शोबे का हिस्सा 26% और सलासी शोबे का हिस्सा 57% है। चौथा, ब्राज़ील में मजमू कौमी पैदावार में इब्तदाई पेशे का हिस्सा 5.5%, सानवी पेशे का हिस्सा 27.5% और सलासी शोबे का हिस्सा 66% है। मज़कूरा वाला मालूमात से ज़ाहिर होता है कि भारत की मईशत का ख़ास तौर पर इब्तदाई पेशे पर मुनहसर है। इसके बरक्स ब्राज़ील की मईशत का इन्हिसार ख़ुसूसी तौर पर सलासी शोबे पर मुंसलिक है। सवाल नंबर 7 है, मुफस्सिल जवाब लिखिए। कोई दो। पहला है, कारखाने के मुतालाती दौरे के लिए सवालनामा तैयार कीजिए। दूसरा, ब्राज़ील के साहिली इलाके की जानकारी लिखिए। तीसरा, भारत की आबादी की तकसीम के लिए कौन से अवामिल असरअंदाज होते हैं। पहले का जवाब है कारखाने की सैर के लिए सवालनामा। इस कारखाने का क़याम किस साल हुआ। दूसरा, कारखाने में कौन कौन सी चीज़ें तैयार की जाती हैं। तीसरा, कारखाने में काम करने वाले मज़दूरों की तादाद कितनी है। चौथा, कारखाने में अशिया की पैदावार के लिए किस किस्म के खाम माल की ज़रूरत होती है। पाँचवा, कारखाने में अशिया की पैदावार के लिए खाम माल कहाँ से हासिल किया जाता है। छठा, कारखाने में तैयार माल किस मुकाम पर फ़रोख्त किया जाता है। सातवां, कारखाने में काम करने वालों की हिफाजत का क्या नज़्म है। आठवां, माहौल को नुकसान न पहुँचे इस मकसद के लिए कौन से तरीक़े इख्तियार किए जाते हैं। दूसरा है, ब्राज़ील का साहिली इलाक़ा। इसका जवाब है पहला नुक्ता है, ब्राज़ील को तकरीबन 7,400 किलोमीटर लंबाई का साहिली इलाक़ा मैसर है। इस इलाक़े में इलाक़े को दो हिस्सों, शुमाली साहिली इलाक़ा और मशरक़ी साहिली इलाक़े में तकसीम किया जाता है। दूसरा है, शुमाल में आमापा से लेकर मशरक़ में रियो ग्रांडे से दोनारले तक के शुमाल साहिल को शुमाली बहर ओक़ियानूस का साहिल कहा जाता है।
वहाँ से आगे जनूबी सिमत में फैले हुए साहिल को मशरक़ी साहिल कहा जाता है। तीसरा है शुमाली साहिल पर अमेज़न और इसके कई माविन दरिया आकर मिलते हैं, इसलिए ये साहिल नशीबी बन गया है। इस साहिल पर माराजो जज़ीरा, खलीज माराजो और खलीज साओ मार्कोस वाक़ है। माराजो साहिली जज़ीरा है जो अमेज़न और टोकिंटस दरियाओं के दरमियान तैयार होता है। चौथा है ब्राज़ील के मशरक़ी साहिल पर कई छोटे और बड़े दरिया आकर मिलते हैं। इस खत्ते में साओ फ्रांसिस्को एक बड़ा दरिया है जो बहरे ओकियानूस में जा मिलता है। इस साहिल पर दूर दूर तक फैले हुए रेतीले साहिल और रेतीले टीले जगह जगह दिखाई देते हैं। कुछ हिस्सों में इस साहिल की हिफाजत मूंगों के चबूतरों और मूंगों के जज़ायर के ज़रिए होती है। अगला सवाल का जवाब है भारत में आबादी की तकसीम। भारत में आबादी की तकसीम गैर मसावी है। खुदरती साख्त, आबो हवा और गुज़र बसर की सहूलियात, इन अवामिल के असरात भारत की आबादी की तकसीम पर वाज़ेह तौर पर नज़र आते हैं। तीसरा है ज़रख़ेज़ मिट्टी, मैदानी इलाक़े और पानी की फराहमी की वजह से सदियों से इन इलाक़ों में इंसानी बस्तियाँ आबाद हैं। ज़राअत और सनत की वजह से बाज़ इलाक़ों में बड़े पैमाने पर आबादियाँ मरकूज़ हो गई हैं, मसलन शुमाली मैदानी इलाक़े, डेल्टा इलाक़े, बड़े बड़े शहर मसलन दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, पूना, बेंगलुरु वग़ैरह। पाँचवा है पहाड़ी इलाक़ों, खुश्क सहराई इलाक़ों और घने जंगलाती इलाक़ों में सहूलियात की कमी की वजह से इंसानी आबादियाँ बहुत कम नज़र आती हैं। छठा है इन सब के बावजूद भारत एक कसीर आबादी वाला मुल्क है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।